Hindustani, a walking, talking miracle of possibilities, daughter of a defense officer, married to a super caring gentleman, and mother of a dashing hunk. I was a NET qualified lecturer, now an energy transformational coach, a breakup surgeon, and I'm also an international access consciousness facilitator and founder of Beyond Imagination Club. I empower people to get free of all the stress they have in their life and help them to change their life quickly, easily, and joyfully. This Dare to Dream Life Dive series is designed for all of us to learn and understand that we can fulfill our dreams even if everything around us is unfavorable and against us, even if that dream seems impossible. If we keep on going, one day we will definitely achieve our dream with total ease beyond our imagination. The guest of honor for this episode is an internationally renowned lady cosmetologist and aesthetic surgeon and anti-allergy specialist making vaccines and former honorary dermatologist to President Estate 2015 to 2018, Dr. Deepali Bhardwaj. She is a celebrity dermatologist also working in social sector to contribute society via Deepanjan Trust. Let's welcome our beautiful designer of skin and a creative, artistic lady, Dr. Deepali Bhardwaj. Great to have you over, Doctor. Thank you. Thank you. Very kind of you to invite me today, first of all. And I'm sorry, मेरा updated नहीं था Instagram, मैंने बहुत दिनों से खोला ही नहीं. I got it. I got it. That's okay. And I know you were already with the patient and you just hop on this show. Thank you so much for gracing this show with your presence. And we are really honored to have you over here. And so proud of you. You are truly an inspiration to this world and to all the women over here. So, can we start? Yes, please do that. And let's hope that we can help and motivate other people also who join us. Yeah, sure. Yeah. So, as this show is basically about Dare to Dream, so first of all, I would like to ask you, what was your first dream and what you wanted to be when you were a kid? I always wanted to be a painter, and my mother used to joke that I am a doctor and you better become a doctor or an engineer, because उस वक्त यही लगता था कि doctor या engineer बन गए then you are professionally successful. So, but I wanted to be a painter or a designer, fashion designer. तब मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों का ध्यान रखती थी. अब मैं सिर्फ स्किन का ध्यान रखती हूँ, कपड़ों का ध्यान रखना भूल जाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं है. Okay, that's great. So what inspired you to actually become a doctor when you actually wanted to be an artist and a designer? Then how come the transition to doctor? See, I felt that I have a lot of empathy. मेरे सामने अगर शायद कोई रोके जाता है तो उस वक्त मेरा बहुत दिल बहला सा जाता है कि मैं कुछ करूं. अभी यहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट है लखनऊ की, उन्होंने नीचे ज्वाइन किया है, डॉक्टर निधि सिंह. सो मैंने उनसे बात करी, इनका भी शायद जर्नी में यही है, फैशन डिजाइनिंग एंड क्लोथ्स का इनको भी बहुत शौक है. मैं अब उसमें पीछे रह जाती हूँ, ये अभी उसमें आगे हैं, मुझसे यंगर भी हैं. मेरे पास वाकई में समय नहीं होता. मेरे पास कपड़े तो बहुत है मगर उनको निकाल के कभी सेट करना या कभी प्रेस कराना. सो मैं बस पहुंच जाती हूँ किसी तरह भाग के कूद के अपने काम में या पढ़ाई करने में. मैं आज भी बहुत पढ़ाई करती रहती हूँ. तो आपने पूछा कि डॉक्टर क्यों बनी आप, तो मेरे मन में ये था कि हाँ, एक चीज मैं जो कर सकती हूँ, लोगों को सुंदर बना के मुझे खुशी मिलती है और कुछ डिजाइनिंग करके मुझे खुशी मिलती है. जैसे अपने पूरे क्लिनिक की घर की इंटीरियर डिजाइनिंग भी मैंने खुद ही करी है, क्योंकि मैंने बहुत दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जाके पढ़ा है. आपको मेरे सीवी के बारे में पता है. मैं ईरान, जर्मनी, बैंकॉक, सिंगापुर, अलग अलग कंट्रीज में अपनी तालीम को लेके आई हूँ, पढ़ाई करके आई हूँ. तो मैंने इतने सेंटर्स और इतना कुछ घूमी, तो मैंने अपने आप ही इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग की, इसको भी सुंदर बनाया और अपने पेशेंट्स को भी बनाती जा रही हूँ. और डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा है कि अब पहली बार भारत देश में भी कोविड की वजह से मुझे लगता है इंडियन डॉक्टर्स आर गेटिंग मोर रिस्पेक्टेड. जो व्हाइट कॉलर जॉब की वो लूजिंग थोड़ा सा कमी दिख रही थी, वो अब वापस आ गई है. सबको ज्यादा विश्वास है, सबको ज्यादा स्टैंप हो गया, हाँ भाई डॉक्टर है तो बढ़िया है. मतलब Oh, you mean to say after this COVID people are actually started giving more respect? हमें तो लगता है डॉक्टर तो हमेशा ही ऐसा है यार. Like that is sweet of you, people like you who feel like that. But lot of times I felt कि ये इतना ज्यादा satisfaction नहीं दे रहा था. If there was little bit of lack in the Indian community, which a lot of doctors, friends of mine would say the same,
बिकॉज वी गो आउट ऑफ द वे. देखिए हर तरह के डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स कमर्शियल भी मिलते हैं पेशेंट्स को, कुछ अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं. बट अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर हो, मैं अपने हर मरीज दोस्तों के साथ जो रिलेशंस बनाती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन दैट. सो इसलिए पीपल लाइक यू बिकॉज यू आर जेन्युइन. सो यू डिजर्व दैट जेन्युइनिटी ओनली. अगर कोई आपके सामने ओवर स्मार्ट बनता है दोस्ती में या पेशेंट में, देन यू ऑल्सो एज अ डॉक्टर फील बैड कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा. Right. So that is missing because a lot of patients have been cheated, unfortunately, in this profession. Yeah, and so that is the reason you choose dermatology, because you were having that artistic and creative mind, and you loved Yes. all the, beautifying the things and all that. Okay, I was about to say that why you choose, but I got my answer myself. So artistic lady sitting in front of me. Okay, Thank you. so when you decided, that you will be actually becoming a doctor and the dermatologist, so were there any kind of challenges you faced? चैलेंजेस तो हमेशा थे, आज भी हैं. और चैलेंजेस हर प्रोफेशनल सक्सेसफुल प्रोफेशन को या स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल को हमेशा आएंगे. तो स्ट्रगल्स तो बहुत थी. मुझे पीडियाट्रिक्स मिली थी, डीएनबी पीडियाट्रिक्स मैंने दिल्ली में ऑलमोस्ट ज्वाइन भी कर ली थी, मगर फिर मुझे था कि मुझे डर्मेटोलॉजी ही करनी है. देन आई वाज एबल टू गेट अ सीट एंड डू डर्मेटोलॉजी आल्सो लकीली. मगर उसके लिए मुझे 1 साल गैप लेना पड़ा. एंड डर्मेटोलॉजी करने के बावजूद भी पहले मैं चाह रही थी कि मैं जॉब करूं थोड़े टाइम. तो मैंने जब जॉब ज्वाइन करी तो वहां लेजर्स नहीं थे. फिर लेजर वाले क्लिनिक पे जॉब ज्वाइन करी तो वहां डॉक्टर वाली फीलिंग नहीं थी. तो मैं वो सेंटर्स के नाम नहीं कहूंगी. अभी एक बड़े फेमस रेडियोलॉजिस्ट भी नीचे मुझे नाम दिखाई दे रहा है, वो भी अभी ज्वाइन किए हैं. तो हम डॉक्टर्स के लिए हमेशा, वो बैंगलोर से हैं, डॉक्टर हेगड़े जस्ट ज्वाइन. एंड तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि बहुत मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए इनिशियली, आफ्टर डूइंग एंड आफ्टर स्टडिंग ऑल्सो. सो इट्स नॉट अ इजी जॉब. But yes, you have to break the glass ceiling. You have to stay focused. Struggles हमेशा आएंगी. आप जब बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो स्ट्रगल ये होगी कि अपने आप को मेंटेन कैसे करो. शुरू में होगा कि सक्सेसफुल कैसे हो, तो एक पोजीशन पे कैसे पहुंचो. सो इसका जो मंत्रा है, जैसे मुझे मैडम ने कहा था कि मैं आपसे जल्दी जल्दी कुछ चीजें पूछूंगी, तो आप सब हमेशा किसी भी करियर में हो, डॉक्टर हो या बियॉन्ड इमेजिनेशन जैसे इन्होंने मुझे किसी तरह मिली है मुझे, और कितनी मुझे प्रॉम्प्ट एंड शी इज अ सक्सेसफुल लेडी हरसेल्फ. ABC हमेशा याद रखना. ये मेरी लाइफ का फॉर्मूला है जो मेरी मदर ने सिखाया. अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड देन कम्स कॉम्पिटेंस. आप पेंटर हो, फ्रिज रिपेयरर हो या आप डॉक्टर हो, आप किसी के लिए अवेलेबल हो जब आपकी जरूरत हो. आपका बिहेवियर अच्छा हो कि अगला पर्सन को आप अच्छा फील करा पाए. बदतमीजी ना करें, रूड ना बिहेव करें, उतनी ही जेन्युइन हो जितना वो आप दूसरे को देखना चाहते हैं. और तीसरी आपकी स्किल हो. मुझे आज तक मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं अपने इतने दोस्तों को जानती हूँ जो डॉक्टरी फील्ड में, डर्मेटोलॉजी या दूसरी फील्ड में मार्केटिंग करते हैं. मैं इंस्टाग्राम पे कभी भी, मैं इंस्टाग्राम अपना कभी कभी हफ्तों तक नहीं खोलती. मैं ट्विटर रोज सुबह शाम खोलती हूँ क्योंकि उसमें न्यूज भी आ जाती है. फेसबुक भी मैं हफ्तों नहीं खोलती. मगर आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर आप अच्छे डॉक्टर हो या अच्छे किसी भी काम में हो तो लोग आपको ढूंढेंगे. तो मैं जब खोलती हूँ तो हमेशा मैसेजेस होते हैं. पीपल हु माइट मेट 5 years ago, 10 years ago हैव मैसेज्ड मी. सो बड़ी खुशी मिलती है कि डॉक्टर आज आपको रिपब्लिक टीवी में देखा. सो पीपल रिमेंबर यू ओनली बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंसी एंड योर बिहेवियर. सो वो हमें ABC एंड C में कम्युनिकेशन किसी ने हमें सजेशन दिया है जो बहुत अच्छा है, मैं याद रखूंगी. तो वो कम्युनिकेशन कैन बी पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंस एज अ करियर. सो इट विल डिफर. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. ABC तो आसानी से याद रह जाएगा सबको, राइट? मेरे को भी याद हो गया. अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंसी. दैट्स ब्रिलियंट. सो एक चीज पूछना चाहूंगी कि देयर इज अ लाइक नाउअडेज देयर इज अ बूम ऑफ दिस कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक क्लिनिक्स, right? जी. So could you give some tips to the viewers that, like, when we are choosing for those clinics, how to choose, like what to see exactly? See, Because ladies are always like so fond of, अच्छा ये करा लें, वो करा लें, but नहीं पता चलता कहाँ पे genuine products and all those things. What is the skill set of the doctor? So any kind of simple information that can help us. सी, हमारे भारत देश में सबसे अच्छी चीज जो है दैट हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने काफी चीजों में सिस्टम्स अच्छे बनाए हैं. टू नो दैट वेदर योर डॉक्टर इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर इज वेरी इजी. आप कहीं भी बैठे हो, जम्मू कश्मीर में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो, यू कैन जस्ट टाइप इन द गूगल, टाइप योर डॉक्टर्स नेम. जैसे यू वांट टू चेक इफ शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, यू कैन टाइप डॉक्टर राजेश्वरी हिंदुस्तानी, फिजिशियन, जम्मू कश्मीर.
Dr. Dipali Bharadwaj, dermatologist, Jammu Kashmir or Delhi or any state of the country. And सरकारी वेबसाइट खुलेगी, that Delhi Medical Council, जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल, महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, उसके अंदर डॉक्टर की डिग्री चट्टा पट्टा आ जाएगा. दिल्ली जैसे शहर में इतने सारे नकली डॉक्टर भरे हुए हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, एमबीबीएस भी नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर होके लोगों को एलोपैथिक दवाई लिख रहे हैं. लिखिए जरूर, मगर साइड इफेक्ट ना करिए, थोड़ा पढ़ के करिए, क्योंकि हमारे देश में अलाउड भी हो गया है. मगर जहां वो पढ़ाई और एजुकेशन लैकिंग होगी, रिस्क और साइड इफेक्ट है. भारत देश में 5 से ज्यादा मरीज मर चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए. मेरे क्लिनिक से हजारों मरीज का हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है. डेथ तो दूर की बात है, टचवुड, एक भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसके बाल कम आए हो या वो ना खुश हो हमसे. सो मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ. ये वीडियो हम बाद में शेयर करें, कौन मेरे पेशेंट्स देखे, कोई मुझसे लड़े, तो ऐसा नहीं होगा. मुझे भरोसा है अपने काम पे. सो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि ये जो मीडिया, सोशल मीडिया की जो चीजें चल रही हैं और लोग उसमें पता नहीं करते, तो हमारी सरकारी वेबसाइट पे कंपलसरी होता है डॉक्टर को रजिस्टर करना. और कृपया अगर आप पैसे खर्च के मिल रहे हैं डॉक्टर को फ्री में और आपका पार्टी फ्रेंड नहीं है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, तभी अपना स्किन या हेयर का कराए. किडनी स्पेशलिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो ही किडनी का ट्रीटमेंट कराए. फालतू में किसी के पास ना जाएं जो डॉक्टर ना हो. Yes, thank you so much for the information. And you have worked as an honorary dermatologist at President's Clinic also, right? So how do you get selected for that? Is there a story behind that? Well, story is very simple, that I was treating somebody who was the security staff of the honorable former president of our country. And that is how I was connected, and for a skin rash to the person himself. And they have a panel of doctors. वहाँ करीब 14-15 डॉक्टर्स होते हैं. मैं उसमें सबसे यंग थी और ये 31-32 years old थी तब मैं. तो मुझे आज तक याद है, जब मैं पैंट और शर्ट में चली गई तो मुझसे कोई मिला नहीं, और फिर मुझे साड़ी पहन के अगले दिन जाना पड़ा प्रेसिडेंट हाउस, एंड ताकि मैं थोड़ी उम्र में बढ़ी लगूं. लॉट ऑफ मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम अपने आप को बढ़ा क्यों दिखाना चाहती हो. मैंने कहा मैंने इतनी पढ़ाई इतनी तालीम ली है कि शायद अगर मैं बड़ी लगूंगी तो मरीज ज्यादा उनको लगेगा कि मेच्योर्ड है, मगर अब वो स्टेज चली गई है. So that is how I got connected, and there were a lot of more doctors. I was the only dermatologist. I served there for 3 years. So it was just an honorary post, but yes, उससे काफी आपको सिस्टम के बारे में पता चलता है. ये देखने को मिलता है कि कितना काम कर रही है हमारी सरकार. कभी कभी मैं बाहर बैठे हुए लगता है कि कम काम हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है. So definitely there is lot of work going on which we all need to appreciate, which our governments are doing. Well, by the way, you still look 30, not more than that. I don't know your age, but yeah, because you are saying that मैं 30-31 की थी, तो और मुझे बड़ा लगना पड़ता था. मुझे तो अभी भी इतनी लग रही हो. So I'm not going to ask on this platform, social media platform, but I would love to find you like 31, 30 only. Okay, one more thing, like was it like when you were actually working over there, तो वहाँ का रूटीन भी नॉर्मल डॉक्टर्स की तरह था, या दैट वाज बिट चैलेंजिंग व्हेन यू वर वर्किंग विद द राष्ट्रपति भवन? देखिए, हम प्रेसिडेंट स्टेट क्लिनिक में थे, बट वहां नहीं, कहीं भी आप जॉब करेंगे तो पॉलिटिक्स हर जगह होती है और हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. स्पेशली बीइंग अ वुमन, आई फील, एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट फॉर वुमन प्रॉब्लम्स आर मोर देन फॉर अ मैन. बिकॉज अ वुमन वेरी ऑफनली अगर हंस के बात करें तो मिसअंडरस्टूड हो जाती हैं, नाराजगी से बात करें तो कहेंगे कि लड़की गुस्से वाली है. सो लेडीज को ज्यादा जज किया जाता है, और लेडीज अगर ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है. या पढ़ी लिखी की बात नहीं है, ज्यादा अपने आप को प्रोफेशनल समझती हो, प्रोफेशनली बिहेव करे तो भी प्रॉब्लम है. सो ये प्रथा और ये दिक्कत हम महिलाओं को ज्यादा आती है. इन्होंने इतना अच्छा वुमेन्स डे पे ये डाला है. वुमेन्स डे पे मैं काफी डिबेट्स में थी कि ये कैसा है, वो कैसा है, कितना वुमेन एम्पावरमेंट है, बट ये मुझे खुद पर्सनली दिखाई देता है कि काफी प्रॉब्लम्स आज भी हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां एक्सपीरियंस कैसा था, बट हाँ, हर जगह पॉलिटिक्स थी. तो आप अपने एबीसी को साफ रखिए, अपनी नियत को साफ रखिए. आप जिस भी करियर में हो उसमें फोकस करके अगर आप काम करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कायनात में चीज आपको पीछे खींच पाएगी. ट्रू, आई एग्री फुली. यस, डेडिकेशन और आपकी इंटेंशन, इट मैटर्स अ लॉट. एंड do you really feel that when you worked over there, it literally contributed a lot in your life and your success? See, success, I don't think I've touched the, even the tip of the iceberg or anything. I'm yet to reach and become successful.
I have only been able to, in social work, empower only 8 ladies fully and even get them married. For me, success will be in a very complete form where I'm able to touch more lives, not just the rich people, maybe like Robin Hood, charge a lot of money from the rich people and, be able to help the poor who can't reach to me otherwise. I will be happy if I'm able to empower one family, every year so that, when I grow old, I'll have so many of my own families. So मेरे So सपने sweet. बहुत सारे हैं और मैं उन पे लगी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बस जेन्युइन इंटेंशन के साथ आप यूनिवर्स में लगे रहो, सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू. सबसे बड़ी बात जो मैं मानती हूँ कि हमारा खुद का विजन क्लियर होना चाहिए. अगर हमें खुद पता है कि हमें क्या चाहिए तो हमें वो चीज मिल सकती है. अगर हमें खुद कहीं क्लियर हो या हमें अपने ऊपर डाउट आ जाए, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो हाँ, हमें वो चीज मिलने में मुश्किल होती है. That's true. I fully agree with you. And you're also working for the upliftment of women, right? Through your trust, Deepanjan. So, जी. what actually motivated you to get into the social welfare along with this doctor's profession? It's not easy, actually. Yes, so see, when I was working as a dermatologist and being busy, I used to, work only once a week for the social work. Post COVID, it has become 3 days a week where I give time to social work. And not for anything, but I feel that people need it more. And it is my mother. My mother Okay. retired from Ram Manohar Lohia Hospital. She was a senior doctor. So उन्होंने ही मुझे कहीं समझ लीजिए धक्का लगाया और उनका ये वे था कि हमें जितना मिलता है उससे ज्यादा हमें बाहर सोसाइटी में देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही लाइफ बिताई है. तो यस, द्वारिका Okay. सिंह हैज आल्सो जॉइन. शी इज अ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट एंड इतना Okay. अच्छा मटन बनाती हैं ये कि मुझे लगता है आपको इनको भी बुला के इनसे कुछ रेसिपीज कभी दिखानी चाहिए कि लोग अपनी उंगली काट जाए तो मेरे पास आ जाए एज अ डॉक्टर. बट आई एम सीरियस, शी इज अ वेरी Uh-uh. गुड कुक. Okay, it will अनबिलीवेबल. be channel chain of all the things, right? शो में बुलाओ, यहाँ पे खाओ, खिलाओ और उंगली काटो, फिर डॉक्टर के पास पहुंचो. Great. Women are actually, supporting each other. I like this idea. Yes. Great to see you here. Twarita, right? Her name is Twarita. Yes, Okay. Dwarika Singh. Okay, and so your role model is your mom, right? Definitely, they cannot be second. And my mother was a single mother, so she brought me up with great difficulties, but she never, never had doubt. I mean, even if she had doubt, didn't show us. She always behaved like a lioness. So yes, we have been working hard. My sister is a successful engineer in London, married to an engineer, and here Wow. I am. And Wow. Awesome. I'm a part of this trust which has touched so many lives in Kashmir, so many lives in Delhi, Rajasthan, Dehradun, and we continue to work. जब ये माइग्रेंट वर्कर्स का एपिसोड हुआ था, more than 10,000 packet of sanitary pads were given free by us to the ladies. We also gave them Awesome. hygiene kits, we gave them toothpaste, we gave them a lot of things, whatever we could collect. I mean, besides the rations and all that. So we felt happy that we are able to, अगर आपके घर पे, आपके सर पे छत है, आपके पास 3 टाइम खाना है, अगर आप किसी और की भी हेल्प कर पाते हैं तो आपके खाने का Right. टेस्ट कभी भी खराब नहीं होगा. Yes, grateful to your mom for, actually giving you so much inspiration and motivating you girls. Thank you to her from my side also. And could you share anything, like any moment of working with a woman of Baramulla? Because I read in your profile also that you worked in the Baramulla district in Kashmir. Was it, how challenging it was? To be honest, it was actually very challenging. It was my mother who went and stayed in Baramulla for good 3-4 months. In fact, she kept doing up and down post COVID also. And the experience where what I found tough was the technology. The WhatsApp doesn't work there at so many places, and we are so used to looking at Instagram and things being fast. Then people were not aware about sanitary pads. So many lives we were able to touch, and more than sanitary pads, see, sanitary pads एक तरह का बहाना है. आप किसी की लाइफ में अगर घुसते हैं, आप उनको बेसिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में एक महिला को बताते हैं, तो अगर वो शादीशुदा हो तो उसका पति और उसके बच्चे, अगर वो शादीशुदा ना हो तो आगे होने वाली फैमिली, आप पूरी की पूरी फैमिली को कहीं एम्पावर कर देते हैं कि बेसिक मिथ्स को हटाओ, टैबू को हटाओ, कैसे हाथ धोना है, कैसे खाने को धोना चाहिए. मतलब lot of Right. basic hygiene, how to save water in rural India when you're washing also. Basic छोटी छोटी चीजें जो शायद हम सब कॉमन सेंस की चीजें जानते हैं,
और इसीलिए Right. जानते हैं, हम टीवी देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी चीजें, मगर बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, उनके पास भी कॉमन सेंस काफी चीजों की है, बट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज कम हो सकती है, या हाइजीन की कम हो सकती है, स्किन में ट्यूबरकुलोसिस होता है, कैसे Yeah. मेंस्ट्रुअल, अगर आप सैनिटरी पैड ना लगाओ तो वहां पे इनफर्टिलिटी होती है. So a lot of lives we are able to touch and save by those kind of missions which we run, and Baramulla is one of them, where we have, along with Ircon Private Limited, we have kept machines which are manufacturing sanitary pads. We have given more than I think 20,000 packets of sanitary pads and done a Wow. survey for more than 8,000 ladies. We have a team of about 6 ladies over there employed, working. So it's a good work, and when we leave and we get out of it, also we leave the machines and the pads to we empower them कि वो बनाए और उसको sell करें, और हम फिर भी उनको hand holding करते रहते हैं after the success of the project also. Wow, wow, that's brilliant. That's brilliant. One of my friend is also doing a this for Pad Square. I can ask those girls to actually connect to you also. They are also That'd be great. distributing pads in different cities and have the squad of this Pad Squad in different cities. So it will be great to Excellent. connect to them. So one more thing, like you are now, though you have already told that I am not successful, it's just a, beginning and all that, the humbleness, I love that. So basically successful people लोग ऐसा ही कहते हैं, हम अभी कुछ भी नहीं है, right? So but still you are an internationally renowned dermatologist, a celebrity dermatologist. So what is your definition of success? See, I feel success, honestly, I feel success would be something where anybody who has loved you and you feel loves you is happy looking at your success. Success will not just be your bank balance, your name, fame, coming in media, having patience, good business. It also will include having deep, dense relationships. So उसको ना भूलें, उस जर्नी को भी अपने साथ रखें, and is something which I would say. So and especially in COVID, one has realized कि life कितनी lonely हो सकती है. So try and lead a very complete life where you balance your personal and professional. आपके जो अपने professional goals हैं उनको भी पूरा करो. ये भी नहीं कि personal में ज्यादा डुबकी लगा लो या professional में ज्यादा लगा लो. एक balanced सुविधा के साथ अपनी life को आगे लेके जाओ. और वो जो पुरानी शाहरुख खान वाली डायलॉग भी है, जो मैं भी अपने बचपन में सोचती थी, कोई चीज पसंद आ जाए मार्केट में और आपको मन हो अपने लिए, अपने प्यार, जिनको आप प्यार करते हैं, खरीदने के लिए, तो आपको दो बारी सोचना ना पड़े कि हाई ये चीज महंगी है. तो वो आई होप हमारे सारे व्यूअर्स, हमारे खुद के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्तों को वो जरूर वो उतनी सक्सेस सबको मिले. So फिर तो आप सक्सेसफुल हैं. You were saying I'm not successful. Yes. She's catching Yes. me on my own words, but yes, I feel there is lots to do. There is so much to do. Yeah. इतना कुछ है करने को, 24 घंटे कम Yes. हो जाते हैं दिन में. जी. Yes, I agree. And I'm sure being a doctor and doing all those things, you also get stressed anytime, right? So how do you keep inspired and motivated? Keep yourself inspired. See, I think that has to be by sports, nothing else. स्पोर्ट्स में सिर्फ टीम स्पिरिट ही नहीं आती है, या स्पोर्ट्स से आपको सिर्फ रनिंग जॉगिंग से आपकी बॉडी में एड्रेनलिन फैलता है, आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, फॉर मेन ऑल्सो विद एजिंग. तो आपको हार्मोन्स भी बैलेंस करेगा, फील गुड फैक्टर भी कराएगा, स्वेटिंग और कार्डियो से आपकी हार्ट और आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी. सो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बी इट स्विमिंग, बी इट साइकिलिंग, बी इट रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी हो, या जिम, जो आपको पसंद आए, मगर वो आप जरूर करिए. और मैं रोज गाना गाती हूँ, एक दो गाने गा लेती हूँ. मेरी आवाज बहुत खराब है, मगर अकेले में ही गाती हूँ एकांत में, तो वो भी We would love to hear you. Just 2 lines. अगर यहाँ पे बोल ही रहा है तो गा दो यार जरा सा. I have caught myself on wrong foot. I swear I'm bad, but anything. Doesn't matter. We are not going to judge you. It's just fun. Yeah, I'm sure, but एक अच्छा सा गाना आप खुद सुन भी सकते हैं. So जो भी चीज आपको बेसिकली रिलैक्स करे. So जब मैं छोटी सी थी तब से मुझे म्यूजिक का बहुत शौक रहता है. तो इनफैक्ट जब पहली बारी मेरे आई थॉट इट्स भारती सुनेजा भी बीच में आई थी. एक हाय, सो एक मेरे जितने भी आज तक म्यूजिशियन पेशेंट्स बने हैं हमारे क्लिनिक पे, जब लकी अली आए थे, तो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी, एंड आई टोल्ड हिम दैट हाउ मच आई हैव लव्ड हिज म्यूजिक. सेम फॉर रवि शेरगिल. So I was very excited. So it was because I feel one thing for sure, which I'll share with you, Rajeshwari, कि और ये चीज बहुत अच्छी है. मतलब मेरे अंदर बहुत कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहुंच गई और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नॉट एट ऑल.
मगर मेरे अंदर जो एक अच्छाई है, मैं कभी किसी से जेलस नहीं हुई, उसकी वजह से मेरी इंटेंशन अच्छी रहती है। मैं स्ट्रेट So फॉरवर्ड हूँ, beautiful. मुफट हूँ, बट जेलस नहीं हो ही नहीं पाती हूँ कि आपके बड़े डायमंड है मेरे नहीं है, तो मैं तो आपसे पूछूंगी अरे वाह कैसे है, कहाँ से लिए, कि अच्छे हैं, कल को हम भी लें। मेरे अंदर आएगी Yes. ही नहीं वो फीलिंग, मगर बहुतों में आती है, तो वो हमें अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए कभी। और Right. मुझे एक ही चीज से जेलेसी होती है, जो लोग अच्छा गा देते हैं। आप कहीं पार्टी में जाओ और कोई सडनली कहे कि मेरी दोस्त है गाना गाती है, तो मेरी घर पे भी कभी कोई पार्टी में मेरे दोस्त आए जिनकी आवाज अच्छी है, तो मैं उनका यूज करती हूँ। मैंने कहती हूँ यार एक गाना गा के दिखाओ भाई, तुम इतना अच्छा गाते हो। तो न्यू ईयर्स पे मेरे फ्रेंड्स आए थे, तो मैंने उन लोगों से ही कहा कि भाई उनके हस्बैंड बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो मैंने कहा भाई आप गाओ। तो ये एक चीज है जो एक कला है। उसी तरह से जो कला इनकी है, आज इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, वुमेन्स डे मंथ जो ये सेलिब्रेट कर रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसमें और अच्छी अच्छी महिलाएं इनके साथ जुड़े, आप सबको गाइड करें, इंस्पायर करें, इन वीडियोस को हम रखें और टाइम अनुसार Thank इन you. वीडियोस को शेयर भी करें अपने लोगों में, क्योंकि Definitely. कहीं कहीं ना कहीं हर महिला में बहुत कला है, बस उसको थकना नहीं है, Yes. डरना नहीं, और आगे Yes. बढ़ते जाना है ना। Yes. Sure. और आपका गाना भी सुनना है। ओके, तुम भी गाओगे मेरे साथ? मैं रुक मैं नहीं गाती जाना हूँ। नहीं, आप ही की थीम से रिलेटेड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो मंजिल आएगी जरूर, बस अपना थाम के रास्ता आप आगे बढ़ते जाइए। ऑल द Thank बेस्ट you टू so much. And I एवरीबॉडी। tell you, Dipali, your voice is beautiful. It's just a point of view you have about yourself. Believe me, because ओके, I'm into energy. ठीक है, जैसे तुम उस चीज से जाओगी, you can literally sing beautiful. You just have to clear those energies. Your voice is क्या beautiful बात and है। you can sing it. तुम्हें jealous होती है और किसी चीज पे नहीं होती ना, वो इसीलिए होती है, you really want to sing और तुम अपने आप को hold करे हुए हो. Your body loves ट्रू, to sing and you're holding yourself. That's the only thing. ट्रू। You can आई definitely, I'll be watching you singing on a stage one day, definitely. Okay, one important thing I would like to know that do you think like there is an importance of mentors or coaches in our lives? How important it is? यू नो आई टेल यू वन थिंग, कोई लिख भी रहा है कि वॉइस इज सो स्वीट, तो देखो अब तो Yes. राजेश्वरी ने मुझे मोटिवेट कर दिया, मैं आपके पास आऊंगी अपनी एनर्जी की मेरे अंदर भी ये बूस्ट आ जाए और मैं गा पाऊं। इसको छोड़ के मैंने सब कुछ, मैंने स्कूबा डाइविंग, स्की डाइविंग, लाइफ में Okay. पायलट, एयर प्लेन चलाना हो, पेंटिंग करनी हो, स्कल्पचर बनाना हो, किताब Wow. चैप्टर्स लिखने हो, कितना कुछ एज अ डॉक्टर से अलग भी मैं कर चुकी हूँ और करती आती हूँ, बट ये सिंगिंग मेरे Okay. को बहुत शर्म आती है। बट आपने जो पूछा मेंटोर्स वाली बात, मेरे को खुद लगता है मेरे मेंटोर मेरी मॉम, जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, और दूसरे मेरे शिरडी साईनाथ हैं। तो मैं Okay. उनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ, डर जाऊं, हार जाऊं, कभी कोई पेशेंट आए, शुरू में पहली बारी जब मेरा एक बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट आया था, तो मैं बहुत डर गई थी, आने से 2-3 घंटे पहले ऐसे डर रही थी कि पत्ते की तरह कांप रही थी कि मैं उससे कैसे बात करूंगी, क्या करूंगी, इवन दो आई एम डॉक्टर। तो हम लोगों को कभी ऐसे ओवर वो नहीं, बिकॉज आई एम कमिंग मे बी फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, तो शुरू में आपको ऐसा लगता है कि अरे ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम में ना डाल दें या उनको फायदा हो ना हो। सो हमें Yeah. अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए जहां आपके मेंटोर का रोल आता है। तो अगर आप Right. शिरडी साई में या आप जिसमें अपना मेंटोर देखें, उनमें आप देखें, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई फूल पत्ता हो सकता है, कोई चॉकलेट हो सकती है, वो जीवित वस्तु होनी नहीं है, बट वो आपको इंस्पायर करके ये याद दिला दे कि आप और आप में ही शक्ति है, हर नारी में शक्ति है और उस नारी को डरना नहीं चाहिए। ये मेरी एक दोस्त है वैशाली राणा, जिन्होंने ज्वाइन किया, ये नई नई डिजाइनर बनी है और ये शुरू में बहुत डरती थी, और अब ये ऐसे कपड़े Okay. बनाती हैं कि लोग इनके कपड़ों के पीछे पीछे जा रहे हैं। सो Wow. आई टेल यू कि हमें अपनी शक्ति को कभी भी डाउट नहीं करना है और हमें आगे फोकस करके चलना है। आपके मेंटोर का बस यही रोल है, तो वो इंसान आपका मेंटोर बन सकता है। योगिता मेरे लिए अच्छा लिख रही है, बट योगिता आप खुद भी बहुत अच्छी इंसान है। सो यू नो आई टेल यू कि आपको एक मेंटोर वही है आपका। ये Yes. मेंटोर जो आजकल ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं, हर चीज पैसा कमाना नहीं है। आप अपने काम में फोकस रहे, अपने एबीसी को रखें, अपनी इंटेंशन क्लियर रखें, मैडम से अपनी एनर्जीज के बारे में और सीखें, अपनी एनर्जीज को बढ़ाएं पॉजिटिव चीजों के लिए। और सबसे जरूरी है, जब भी आप डरें तो आपका कोई इंसान हो आपकी लाइफ में, कोई चीज वस्तु कुछ भी हो जो Yes. आपको मोटिवेट कर दे, वो बहुत जरूरी है। True. वही इंसान आपकी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए। True. I love your positivity. I love the way you speak.
Because Correct. the reason I started this program and I try to brought successful people, because people, if they have that positivity and that mindset, then only they can actually reach somewhere, right? So, and when we speak such things, it is like creating that vibes again and again in this universe. So thank you so Correct. much for this. And now the quickest one, though you are already very quick and very quickly, your presence of mind is too good. You are totally focused and you know actually what you want and what you everything. Anyways, your first love. Okay, my first love was a guy on a love, no, in that sense, if you have to say, was a दिल्ली में एक बाइक रेस हुई थी, तो मुझे आज तक याद है, उसमें वो आमिर खान जैसा लड़का लगता था, तो मैं स्कूल में थी, तो मैं देख के अच्छा. पागल हो गई थी. तो सडनली मुझे वो याद आ गया, बिकॉज ये छोटे छोटे Okay. बच्चे विशाली रैना जैसा मुझे दिख रहे हैं. And but first love, honestly, other than that, was Dairy Milk chocolate. On a serious note, I have always loved Wow. it. Dairy Milk chocolate. तो उसके लिए मैं कुछ भी Okay. कर Whenever सकती I'm थी. gonna meet you, I'll bring Dairy Milk chocolate for you. Then done. Explain yourself in just one line. I don't know. I think I'm an okay in many things, but I think I'm a good human. That's all. That's One line. brilliant. That's more important. Your greatest strength. My mother. Wow. And your favorite pastime? नेटफ्लिक्स. कोविड में तो नेटफ्लिक्स सबका. मैंने बहुत कम सीरीज छोड़ी है. मैं आजकल ऐसी सीरीज देखती हूँ जैसे मैं कभी भी इतनी फ्री टाइम मेरे पास कभी हुआ नहीं, और दिमाग थकता नहीं है क्योंकि इतनी सर्जरीज हो नहीं रही है आजकल, तो दिमाग नहीं थकता, तो नींद नहीं आती, 2 किताबें भी पढ़ लेती हूँ हफ्ते की, तो अब मैं और क्या करूँ, तो फिर मैं नेटफ्लिक्स देखती हूँ. तो नेटफ्लिक्स में क्राउन सीरीज से वो तांडव सीरीज, अभी वो बॉम्बे बेगम, सो मच हैज कम. So I'm enjoying myself. I feel like I'm in college again. So जैसे उन्होंने कहा कि मैं young लग Wow, रही wow. हूँ, उसका I'm उसका loving reason that free time है. because मैं ये सोच रही थी डॉक्टर के पास टाइम कब होता होगा कुछ और करने का. तो मुझे बड़ा हैरानी होती है सुन के कि नेटफ्लिक्स में टाइम स्पेंड हो रहा है. ग्रेट. और वैसे आई वाज मैंने सच्ची थिंकिंग. कोविड से हाँ, या कोविड से पहले कभी नहीं देखा था, मगर तो it's कोविड only का after COVID. आपके ऊपर एक वरदान हो गया. चलो थोड़ा ऐश कर लो, कॉलेज टाइम को जी लो, राइट. Right. True. In a way. Hmm. So, okay. So, according to you, what is the best makeup to enhance the beauty of a woman? See, I will not say the cliche smile, but honestly, it is smile and the shine in your eyes. You have to smile whenever you feel कि ये आपका लव हो सकता है, क्रश हो सकता है, या आप इसको हेट करते हैं, तो भी अपनी ब्यूटी दिखाइए कि बंदा जल जाए. तो स्माइल करिए, मेरी राय है. और क्लियर स्किन होनी चाहिए. सुंदरता एक रंग होना है. सुंदरता फेस पे मेकअप लगा के नहीं आएगी, बट अगर आपका एक बॉडी कलर है, मुझे पता है कि मुझे दिख रहा है कि बाद में मुझे कहेंगे यहाँ लाइट कम है जहां मैं बैठी हूँ, तो मैं इतनी देर से सोच रही थी लाइट कम है, मगर अगर आप देखेंगे तो कलर एक होना चाहिए एक पर्सन का, वो काला हो, गोरा हो या भूरा हो. सो आई फील सुंदरता इज दैट. फेस पे कहीं मार्क्स हो, बॉडी पे कहीं मार्क्स हो, तो वो सुंदरता को कम करता है. आपकी आंखों में चमक और इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, एंड लिप्स पे स्माइल होनी चाहिए. दैट्स मोर देन इनफ. सो गाइस समझ लीजिए, आपको सिर्फ ब्यूटीफुल बनने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्माइल रखनी है. सो आई थिंक आई एम ब्यूटीफुल, राइट. मैं स्माइल की ना Yes. बहुत बड़ी खांसी रखती हूँ. स्माइल तो छोटी सी हो जाती है. Anyway, jokes apart. If you if you could time travel to the age of 16 years, what profession you would like to choose now? I will not choose anything else apart from what I chose. The only thing I feel is that if tomorrow, if I know somebody who is in a power post closely, I think the Indian education system should be slightly changed. I know of people जो ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बीच में 3 महीने का ब्रेक ले रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं, 3 साल का ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं. सो आई फील इन इंडिया ऑल्सो द सिस्टम शुड बी लाइक दैट, क्योंकि मैं टिल द एज ऑफ 29 पढ़ती रह गई. तो मैंने पहली कमाई करी, पहली नौकरी करी 30 पे. तो दुनियादारी शुरू ही तब होती है जब आप पहला पैसा कमाते हैं. सो आई फील दैट वाज अगर आप सिंपल ऐसी फैमिली से हो जहां आपको बहुत कंट्रोल करके रखा गया है, जो मेरे साथ हुआ,
तो मुझे लगता है कि वो एक चीज जिसका मुझे दुख है, अदरवाइज मुझे किसी भी चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ वेयर आई ब्रॉट, एंड एवरी लाइफ टाइम आई वुड लाइक टू डू द सेम थिंग, बिकॉज मुझे इतने लोग इतना प्यारे मैसेजेस दिवाली पे, बर्थडे पे मेरे हमेशा याद करते हैं, मेरे पुराने पेशेंट्स पिछले 10 साल से। तो मुझे वो इतना मैं खुश हो जाती हूँ जैसे जान भर गई हो मेरे शरीर में। Yeah, तो so मुझे नहीं sweet लगता of मैं you. और कुछ कर पाऊंगी कभी। जी। Stay blessed always. What is the craziest thing you did in last 1 year? लास्ट 1 year आई थिंक क्रेजियस्ट वाज ड्राइविंग अ बाइसिकल, और मैं उससे गिर भी गई मगर मैं उसको फिर चलाती रही। वो बीइंग ह्यूमन की मैंने साइकिल खरीदी, उसमें गियर्स लगवाए थे, ये सब था। और वो 60 की स्पीड पे मैं एक ऑटो वाले के साथ कंपटीशन लगाती हुई जा रही थी। आई डोंट नो मैं अपने आप को क्या सोच रही थी, बट हाँ, कोविड के 72 डेज बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग रेसेस पे जाना शुरू कर दिया मैंने। अभी मैंने वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया एक बारी गिरने के बाद, but I think that was a little over crazy. Wow, I love that. I would definitely love to do that once. One time also, I would. And what is your biggest dream now? Though you have told me a lot of dreams. Yes, you caught them. And see, my dream I think would be that जो मैं कर रही हूँ ना, उसको मे बी से 20% और बढ़ा पाऊँ और उसको सस्टेन करूँ फॉर नेक्स्ट 20 years 30 years। रास्ते में कोई भी रोड ब्लॉक आए तो उसको साइड में उठा के कोने रखूं या अपने आप को उधर कोने से ले जाऊं और यही करती रहूं जो कर रही हूँ नॉन स्टॉप, इसी पॉजिटिविटी के साथ। कि कोई नजर लगाए, आपको बुरा बोले, पीठ पीछे बोले, मुंह पे मीठा बोले, मगर आप इसी एनर्जीज के साथ चलती रहे। सच बताऊं तो यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम है। Okay, this will happen. Not an issue. It's very easy. So, actually, just for fun, I'm asking. Now you are a successful person. आपकी तरफ से आप नहीं सोचती हो, बट मैं सोचती हूँ आप सक्सेसफुल पर्सन है। तो आपने इतनी मेहनत करी, सब किया, तो क्या कभी आपने सपने में ये सोचा था कि कभी आप मेरे शो पे भी इनवाइट होंगी एज ए स्पेशल गेस्ट? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी किसी भी चीज का नहीं सोचा था। मैं जैसे आपसे जुड़ के आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कभी नहीं भूलता, मैं बरखा दत्त जी के शो पे गई थी, तो मैं उनको जी बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी मैं। वाओ, बरखा दत्त, किरण बेदी, मैं उस जनरेशन से हूँ, बीइंग बोर्न इन 1980s। सो यू नो आई फील दैट वी यूज्ड टू लुक अप, यू नो, व्हेन आई वेंट फॉर हर शो। सो वो हमने बचपन से एक्साइटमेंट, पहली बारी मैं एनडीटीवी में बैठी, वो मेरा फेवरेट चैनल है, तो मैंने कहा अरे। So, you know, I was very happy, but I feel that any of these things should not, go make us feel mad or crazy. I take them as part of routine. Definitely, आज आके मुझे बहुत special feeling आई, all thanks to राजेश्वरी हिंदुस्तानी जी here. But I feel that हमें इन चीजों को normal लेना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हमने आपसे जो डिस्कस किया, इन्होंने मुझे सिखाया कि डॉक्टर साहब आप गाओ, आपको सोचना नहीं है 2 बारी भी। कोई बुरा भी होगा तो क्या होगा, शायद उस फियर से भी मैं निकल जाऊंगी। पहले मैं इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं थी जब मैं स्टूडेंट थी। मैंने अपने आप को कितनी पढ़ाई करके 29 तक इतनी कंट्रीज जाके फेलोशिप ली, एलर्जीज की हम वैक्सीन बनाते हैं जो मैंने जर्मनी से सीखा, तरह तरह के ट्रीटमेंट सीखे। तो मुझे पता है कि पहले मैं इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस पर काम किया, मैं अच्छी हो गई। तो मुझे लगता है कि हमें सीखने को भी मिलता है ऐसे टॉक से। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी टुडे हियर, एंड आई होप दैट दिस रिकॉर्डिंग विल कम ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो फॉर माय फ्रेंड्स। And also, I hope that everybody who is attached to us and seeing us today stay motivated and आगे बढ़ते जाएं बस। Thank you so much. And I would like you to actually just share any 3 tips what you feel, though you have told that ABC, but still at the end, anything that you feel that you have learned from the whole journey and that would help others to fulfill their dreams. See, I feel most important is apart from ABC is your intention, your focus. You have to non-stop keep working. हम लोग फिल्म स्टार्स की लाइफ देखते हैं, मगर it is not easy. अभी एक मेरी फ्रेंड ज्वाइन कर रही है, रिचा शर्मा. Besides being a beautiful person and a writer and so many things she does, you know, she's also always motivating others. So आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, और खुद पॉजिटिव, अगर आप लोगों को पॉजिटिव बनाएंगे ना, अगर आपके अंदर भी नेगेटिविटी है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली बन जाएगी। सो मेरी जाते जाते आपसे जो 3 टिप्स हैं वो ये कि अपनी स्किन का ध्यान रखिए। आपकी स्किन पे शायद ज्यादा शाइन होगी तो कॉन्फिडेंस होगा। स्किन का ध्यान नहीं रखना है तो मेकअप करिए। अपनी एक्सटर्नल एनर्जीज और इंटरनल एनर्जीज को पॉजिटिव रखिए, जिनके लिए इनसे मिलिए, और स्माइल करिए अपनी एनर्जीज को अच्छा रखने के साथ साथ। और तीसरी चीज सबसे जरूरी ये है कि आप अपने आप को साथ बैठ के स्वॉट एनालिसिस करें या जो भी करें, सोच के कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं,
उसको अपना 100% दें, उसमें आप पीछे ना हटें, डरे ना कि आपको ये करना है नहीं करना है, जो आपका मन है ना उसके लिए जस्ट टेक द लीड, गो अहेड एंड डू इट, अचीव इट, गिव इट योर बेस्ट, Beautiful. हो या ना हो. That's brilliant. That's brilliant. And literally, I'm so grateful for sharing this, incredible nuggets of wisdom. And one more thing, in case somebody would like to reach out to you, how can they, where can they find you? I'm at dermatdoc, DERMATDOC, on all my social media handles, be it Instagram. I'm more active on Twitter, on Facebook also with the same icon, dermatdoc, you can find me. So signing off, Dr. Dipali Bharadwaj. Thanks to Beyond Imagination Club for inviting me today. Thank you. Thank you so much for gracing our show. So grateful to you. And I'm really thankful to Madhvi also for connecting me to you. Thank you. Yes. We'll be in touch soon. Yes. Thanks. Shukriya. Bye. Yeah, shukriya. Thank you so much for watching this video. I hope this series of Dare to Dream has helped you to achieve your dreams and touch the skies of success. Do not forget to subscribe our YouTube channel, and as usual, I'll see you in the next episode. Till then, stay safe and have fun. Wish you a lot of ease and magic. Signing off, Raseshwari Hindustani, a walking, talking miracle of possibilities.